This election commission is doing nothing. Political opponents are being sent to jail. Political parties' accounts are getting frozen. So where is the level playing field? And the reason behind all this is that election commission is selected by a 3-member committee, of which 2 are from BJP. The arrest across the nation has sent a strong signal that literally the dictatorship in the country is now visible. भाजपा की प्रत्याशी ईडी की वकील हैं, इससे बड़ा क्या प्रमाण मिलेगा आपको कि भाई ईडी और बीजेपी एक है? The purpose was not investigation. Purpose was that he must go behind bars so that he is not available during the elections. There is no ground for you to keep him in jail. The ground is only one: the fear of Arvind Kejriwal, which is written on the face of Mr. Modi. This election bonds, it's a fit case for the BJP leadership to go to jail. Money has been found. 55 crores has been found. Kejriwal ka arrest is the trigger. This is the beginning of the end of Mr. Modi in this country. क्या है कि इस वक्त भाजपा की हताशा, निराशा और सामने दिख रही हार इस प्रकार की हरकतें उनसे करवा रही है। लेकिन वो जान लें, ये देश भगत सिंह का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है, ये इसको खत्म नहीं होने देगा हिंदुस्तान। 13 लाख करोड़ का माफ किया है मोदी जी ने अपने दोस्तों का। अहंकार आ गया, मोन्यूमेंटल अहंकार है मोदी जी में। मैं हूं यहाँ का किंग। अहंकार किसी का नहीं रहेगा। इस बार अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद ये फैसला कर लिया है कि मोदी जी का ये आखिरी चुनाव है। देश थक चुका है इनसे, देश हिंदू मुसलमान से थक चुका है, देश समस्याओं का समाधान चाहता है, गरीब के पेट में अन्न जाए वो चाहता है, नौजवानों को रोजगार मिले वो चाहता है। तो ये तो देश देख रहा है ना किस प्रकार का नेतृत्व देश को मिला है। तो देश थक गया है, इस पर देश बदलाव चाहता है। Hello and welcome to HT's ongoing talk show, The Interview, and our special segment, Elections 2024, The Big Picture. The Aam Aadmi Party is facing a crisis. Its leader, Arvind Kejriwal, is in jail, as are 2 other ministers. With elections on the anvil, the foot soldiers are doing their best to keep it going. Not easy, yet they are not giving up. We have with us Somnath Bharti, AAP's candidate from New Delhi, to take us through the recent events and the fallout. Somnath Bharti at his combative best in this edition of Elections 2024, The Big Picture. Welcome to the show, Somnath Bharti, and thank you for being here with us. It's an extreme pleasure here that I'm before you. Let me begin with the impact of Mr. Arvind Kejriwal's arrest. Tell me about both, the good and the bad. See, this is unbelievable what has happened, because the nation is literally asking this question, that after the election gets announced, the country gets controlled by election commission. If you recall the days of TN Session, the way he used to work, because the moment election gets announced, TN Session used to be absolutely in charge of the country's matters. This election commission is doing nothing. Political opponents are being sent to jail. Political parties' accounts are getting frozen. So where is the level playing field? And the reason behind all this is that election commission is selected by a 3-member committee, of which 2 are from BJP. BJP deliberately passed a law in the parliament replacing CJI by nominee of Prime Minister. Now the question is, if election commission is selected by a committee of 3 members, 2 of which are from BJP,
how impartial this election commission would be. It's not a rocket science. So the arrest across the nation has sent a strong signal that literally the dictatorship in the country is now visible. A sitting chief minister, 3-time chief minister, most popular chief minister, picked up at night like a thief and then taken away from the back gate. So what is going on? See, 21st March for me became a dividing line. Because before that, when I was going to the people, they used to ask questions. Let's say out of 100, 10 may ask questions. Why should we vote for you? Now, after arrest, when I go to the parks, when I meet people, they don't ask questions. Everybody is now saying the jailing of Arvindji is good enough a proof that we all need to come together to save the democracy, to save the nation. 3 points. One, you are saying the election commission comes into action. Point well taken. But at the same time, the election commission cannot supersede the law enforcing agencies. So if somebody is found to be, it's a strong word I'm using, a criminal or Right. accused, Right. then the law is not going to let him go scot-free. Yes. Second point, that you said he is a sitting chief minister. Sure, because he refused to resign. Unlike Hemant Soren, who before he was taken into custody, submitted his resignation. Third, you say he is the most popular, and I'm repeating your words, most popular chief minister. His influence does not go beyond Delhi, Punjab, and perhaps Haryana. Look at the charge, so-called Sarab Ghotala. Not a iota of recovery of money. There is no money trail. I mean, this arrest itself is a punishment. So let him be convicted. You try him in a court of law. ED was wanting him to be cooperating for the investigation. Where he did not. You had 11 days of custody of Arvind Kejriwal. You did all the investigation. Then what was the need for him to be sent to jail? What purpose does it serve? ED lawyer was none less than BJP's spokesperson, यहाँ की जो प्रत्याशी है भाजपा की. तो भाजपा की प्रत्याशी ईडी की वकील हैं. इससे बड़ा क्या प्रमाण मिलेगा आपको कि भाई ईडी और बीजेपी एक है? If the only purpose was investigation, the purpose was not investigation. Purpose was that he must go behind bars so that he is not available during the elections. Because if Mr. Modi does not have answers of anybody's questions, it is Mr. Arvind Kejriwal. He is uncomfortable. He gets बौखला जाते हैं जैसे केजरीवाल जी का चेहरा देखते हैं कि पता नहीं क्या हो गया. Second question you asked, that sitting chief minister. Tell me. Who jumped several summons? So question is, number one, that what does BJP want? BJP wanted that Ain Kane Prakren arrest CM, force him to resign, let his party go split, go in pieces, and then AAP is over. So we have to see the strategy of BJP. So we have to ensure that they do not succeed in their strategy. There is no ground for you to keep him in jail. The ground is only one, the fear of Arvind Kejriwal, which is written on the face of Mr. Modi. भाई अरविंद जी के अरेस्ट के बाद पूरी दुनिया में आप देखें अमेरिका, फ्रांस, many countries came forward to say that democracy in India is in danger. So अब हजारों लाखों करोड़ खर्च करो so called upliftment of India's image abroad और एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा करनी कर दो घृणित काम जिससे कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में नाम उनका उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न करो. दिस election bonds, which was declared by Honorable Supreme Court as unconstitutional, electoral bonds. It's a fit case for the BJP leadership to go to jail. Money has been found. 55 crores has been found. What more do you need to send him to jail? No money has been found in the case of Manish Sisodia, Arvind Kejriwal, Sanjay Singh. Money has been found there. They must go to jail. What more do you need? Why can't ED raid now BJP headquarters
BJP leaders? When will they investigate this? 2 points. One is about Mr. Arvind Kejriwal's popularity, which you have not answered. And second, आपने कहा कि अब जब मैं कंस्टिट्यूएंसी में जाता हूँ तो लोग मुझसे प्रश्न नहीं पूछते, पर लोग मुझसे डेमोक्रेसी के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे पे है. Is that a good which has come out of this arrest? केजरीवाल का arrest is the trigger. This is the beginning of the end of Mr. Modi in this country. You just touched on my next question, which is how much of a challenge is this arrest and what impact will it have over the forthcoming elections? केजरीवाल जी का जो अरेस्ट है ये इनकी सबसे भारी गलती है, सबसे भारी गलती है, क्योंकि ऐसे शख्स को अरेस्ट किया जिसने कि आम जनता की समस्याओं को दूर किया. 200 यूनिट बिजली पहली बार इस देश में किसी ने मुफ्त दी, पानी मुफ्त दिया, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त की. ऐसे व्यक्ति के अरेस्ट से इस देश के अंदर कोहराम मच गया है. क्या है कि इस वक्त भाजपा की हताशा, निराशा और सामने दिख रही हार इस प्रकार की हरकतें उनसे करवा रही है. लेकिन वो जान लें, ये देश भगत सिंह का है, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है. ये इसको ख़त्म नहीं होने देगा हिंदुस्तान. इन्होंने जो गलती की है केजरीवाल जी को अरेस्ट करके, इसका खमियाजा भुगत के रहेंगे. तो इसका फॉल आउट अच्छा हुआ? अच्छा खराब मैं ये कह सकता हूं कि अरविंद जी के अरेस्ट के बाद जो माहौल पैदा हुआ है देश में कि अब बहुत हो गया, हर प्रकार के डिफरेंसेस को लोग भूल करके आज साथ हो गए हैं कि भाई सब लोग मिलके देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ. तो जो ऑफ कोर्स इस वर्ड को आप कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, तो जो सैगिंग फॉर्च्यून्स आपकी थी उनको एक बूस्ट मिल गया है. नहीं, देखिए, हम तो वो व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ काम की राजनीति करते हैं. हमने आज तक कभी ना धर्म की राजनीति का सहारा लिया, ना आज तक हमने कभी जाति की राजनीति का सहारा लिया. सिर्फ काम की राजनीति. इकलौता व्यक्ति केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कहा कि काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो. जब दिल्ली की ताकतें छीनी जा रही थी पार्लियामेंट में तो ये इनके लोग ताली बजा रहे थे. इस कारण से ये चुनाव दिल्ली वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के संसद में जब सांसद पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी के, इंडिया अलायंस के, अगर पहुंचेंगे तभी जाकर के दिल्ली के मुद्दों पे बातचीत वहाँ होगी, क्योंकि दिल्ली की चिंता करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं. इसलिए डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, दिल्ली की जनता के हकों को वापस लाने के लिए. नहीं तो क्या होगा, फ्री बिजली स्कीम ख़त्म कर देंगे ये, फ्री पानी स्कीम ख़त्म कर देंगे ये, जो स्कूल हमने अच्छे किए वो ख़त्म कर देंगे ये, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे ये. इसलिए सबके लिए ज़रूरी है इस बार मिल करके अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को, इंडिया अलायंस के सिपाहियों को भेजो सांसद के रूप में जो तुम्हारे लिए लड़ेंगे. आपने कहा बहुत सारी स्कीम्स ख़त्म कर देंगे, एट द सेम टाइम बहुत सारे स्कैम्स भी अनअर्थ कर देंगे, इंक्लूडिंग, और जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी हैं और आम आदमी के लिए सोचते हैं, जो उन्होंने अपना शीश महल कोट अनकोट बनाया है उसका क्या? एंड द मफलर मैन टुडे इज स्टेइंग इन अ पैलेशियल हाउस. ये तो भाजपा का राजनीतिक स्टेटमेंट है. घर नहीं बना. देयर इज पीएम्स हाउस. 20,000 crores was spent by Prime Minister on his house. So two wrongs make a right. No. Governments make avenues for their own heads. How will they work? Right? Such things are not. They have been politically maneuvered by BJP. सबको पता है किस प्रकार से मोदी जी हाथ धो के पड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी के पीछे. 13 लाख करोड़ का माफ किया है मोदी जी ने अपने दोस्तों का. आपने केजरीवाल जी के महल की बात नहीं की. कोई महल वहल नहीं है. 4 कमरे हैं, काहे का महल? ये तो भाजपा का बनाया महल है. जब कोई मुद्दा मिला नहीं इनको तो इस प्रकार से उल जुलूल बातें करते रहो.
बीजेपी एक बहुत सुलझी हुई पार्टी है, एटलीस्ट when it comes to strategy. So it does not usually make mistakes. Why do you think it committed a political blunder by arresting Mr. Arvind Kejriwal? अहंकार आ गया है, मोन्यूमेंटल अहंकार है मोदी जी में। मैं हूँ यहाँ का किंग, कोई किसी की हिम्मत ना हो मेरे खिलाफ बोलने की। अहंकार किसी का नहीं रहेगा। इनको लग रहा है मैं कुछ भी करूं जनता कुछ नहीं पूछेगी मुझे, लेकिन जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के बाद ये फैसला कर लिया है कि मोदी जी का ये आखिरी चुनाव है। अरेस्ट का जो पॉजिटिव फॉल आउट है, इफ आई कैन यूज द वर्ड, उस पर बात हुई, बट एट द सेम टाइम द फैक्ट रिमेन्स कि आपके स्टार कैंपेनर इज बिहाइंड बार्स, आपके मिनिस्टर्स बिहाइंड बार्स है। कितना एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है ये आपको, आपके कैंपेन को? आपके नेताओं को जेल में बंद कर रखा है, तो इस देश की और दिल्ली की हर व्यक्ति प्रचार करेगा। अब दिल्ली का हर व्यक्ति स्टार प्रचारक बन गया है, सब लोग प्रचार कर रहे हैं। अब ये चुनाव बन गया है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता के बीच में। देखिए, आप लोग रिक्रिएट करना चाह रहे हैं अन्ना हजारे मूवमेंट का मोमेंटम, बट दैट इज नॉट हैपनिंग। तो इसलिए जब आप कह रहे हैं कि हर आदमी आम आदमी, दैट डजंट सीम टू बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। देखिए, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा ये क्या विजिबल है क्या विजिबल नहीं है। जो दूसरा मुद्दा है, द अदर प्रॉब्लम सीम्स टू बी दैट देयर इज नो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। मिनिस्टर्स आर इन जेल, मिस्टर केजरीवाल इज इन जेल, और others have left the party, and post marriage Raghav Chadha is missing in action. So isn't the party facing a real crisis? मैंने कहा ना, ये भाजपा यही चाहती थी जो आप कह रहे हैं, ये भाजपा की भाषा है। भाजपा अपने मंसूबों में नाकाम साबित हुई है, और इस पर लाख वो चाह ले, हिंदुस्तान उसको नहीं चाह रहा। सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की बात, बहुत है लीडर्स हमारे। चक्कर क्या है कि बीजेपी माइंडसेट में लीडर का मतलब होता है बड़ा भारी भरकम। ठीक है जी, हमारे यहाँ तो मोबाइल बनाने वाले ने पंजाब के उस वक़्त के सीएम को हराया। यही तो मुसीबत है भाजपा की। आम आदमियों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, ये चाहती है कि किसी नेता की बेटी आगे बढ़े। क्या है यहाँ के उम्मीदवार? फलाने नेता की बेटी। परिवारवाद पे गालियाँ दे रहे हैं लोगों को जाकर के, अब परिवारवाद का यहाँ नमूना पेश कर रहे हैं। how will Mr. Kejriwal technically run the government from jail? Isn't it easier said than done? This is your constitution. You read it. Show me the provision. I'm not saying it is wrong. I'm not saying he should resign. I'm not saying he cannot run the government from jail. I'm asking technically and in practical terms, how would he run it? गवर्नेंस हमारे पे छोड़ दीजिए, हम सरकार में हम चला लेंगे सरकार। हम भाजपा के मनसूबों को सफल नहीं होने देंगे। जो भाजपा सोच रही है कि उसके मनसूबे सफल हो जाए, नहीं होने देंगे। कांग्रेस के अलायंस की जो बात करें, कांग्रेस वाज द वन विच मेड अ लॉट ऑफ नॉइज अबाउट द एक्साइज पॉलिसी पहले, एंड अब वो डिफेंड कर रहे हैं। क्वाइट लाइक मिस्टर केजरीवाल हु सेड, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा, और आज उन्हीं के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। वो ऐसा है कुमकुम जी कि पॉलिटिक्स में हर क्षण अलग होता है। हिंदुस्तान की ज़रूरत इस वक्त क्या है, आप समझिए, एग्जांपल देता हूँ आपको, कि दो हिंदुस्तानी खूब झगड़ते हो, सिर फुटबॉल करते हो, मारा पीटी करते हो, सामने पाकिस्तानी आ जाए, क्या करेंगे? हिंदुस्तानी अपने झगड़े भूल जाएगा, पहले पाकिस्तानी को मार भगाएगा। अपने झगड़े बाद में सुलटा लेंगे हम, पहले पाकिस्तानी भागे, अपने झगड़े हम अपने आप कर लेंगे। हम अपने डिफरेंसेस को भूल के इस पर हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वापस आए, हिंदुस्तान के संविधान को वापस स्थापित किया जाए, हर व्यक्ति साथ लड़ रहा है। Talking about the big picture, what does 2024 look like electorally, politically and nationally? देखिए, भाजपा इस वक्त कितनी सॉर्ट ऑफ परप्लेक्स्ड है, बिल्कुल हताशा में है। वो इस बात से नज़र आ रहा है कि अपोनेंट को अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं। हेमंत सोरेन साहब हो, अरविंद केजरीवाल जी हो,
सिटिंग सीएम को उठा के जेल भेज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिए। सब पर लगातार रेड हो रहा है, विधायकों तक पर रेड हो रहा है। तो इस एक बात सिद्ध हो पा रहा है कि जी भाजपा इस चुनाव को नहीं जीत पाएगी। वो अपने 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 करनी से ही इसका परिचय दे रहे हैं। और दूसरी बात, देश थक चुका है इनसे। देश हिंदू मुसलमान से थक चुका है। देश समस्याओं का समाधान चाहता है। गरीब के पेट में अन्न जाए वो चाहता है। नौजवानों को रोजगार मिले वो चाहता है। किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी की मुसीबत हो गई, किस प्रकार से मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद महिलाओं के साथ ऐसा घृणित अपमान हुआ, देश ने देखा। और आज तक प्रधानमंत्री जी की जुबान चुप है, एक शब्द नहीं है। तो ये तो देश देख रहा है ना किस प्रकार का नेतृत्व देश को मिला है। तो देश थक गया है इस पर देश बदलाव चाहता है। और जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी लड़ रही है वहाँ बहुत ही पॉजिटिविटी है। इंडिया अलायंस जहाँ जहाँ लड़ रहा है वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। आप कह रहे हैं कि देश थक चुका है। इफ़ वी टेक योर पॉइंट, तो जो बीजेपी का 400 इस बार 400 पार का स्लोगन है उसकी बात अगर करें, और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा दैट द ऑपोजिशन विल बी रिड्यूस्ड टू अ विजिटर्स गैलरी। अब ये अहंकार है। दोनों स्टेटमेंट में अहंकार झलकता, कुछ नहीं झलकता। समर्पण है ही नहीं, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये आपने इतने वादे किए थे, 15-15 लाख दूंगा, सब खत्म हो गया। एक भी वादा मोदी जी हिंदुस्तान का पूरा नहीं कर पाए। Let me put it differently. What is it that the BJP is doing right to make the 400 पार slogan a reality? एक ही चीज़ वो करने का व्रत कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को तार तार करो, नेताओं को जेल बंद कर दो, उनके अकाउंट फ्रीज कर दो, अपने पास अथाह पैसा इकट्ठा कर लो, ईडी के जरिए भाजपा के अंदर वसूली करो। ईडी को उन्होंने वसूली का साधन बना लिया। ईडी का नाम हो गया एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। वो कर रहे हैं। तो पैसे के दम पर, नेताओं को जेल भेजने के दम पर, पॉलिटिकल पार्टियों के अकाउंट्स को फ्रीज करने के दम पर, इलेक्शन कमीशन के दुरुपयोग के दम पर, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के दुरुपयोग के दम पर इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी और सारी ऑपोजिशन को माननी पड़ेगी दैट बीजेपी के पास एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, ऑपोजिशन के पास नेशनली मैं कह रही हूँ, या आपके पार्टी में नेशनल चेहरा टू कॉम्बैट मिस्टर मोदी कोई नहीं। जनता इस बार अच्छे उम्मीदवार चाहती है। मेरे क्षेत्र में जनता चाहती है वो सांसद जो जनता को उपलब्ध हो, उनके पकड़ में हो, अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। आपने अपने क्षेत्र की बात की और ये सारी क्वालिटीज़ गिनवाई, उपलब्ध हो, हमारे बीच में रहे। आपकी जो राइवल है उनमें ये सब क्वालिटीज़ हैं, और एक और क्वालिटी है जो आप में नहीं कही जाती, वन दैट शी इज़ अ न्यू फेस एंड अ क्लीन फेस वाइल यू are a controversial leader, and in one sense your critics call you even a mob leader. See, this is all BJP stocks. क्या है बैकग्राउंड भाजपा के प्रत्याशी का? क्या है बताइए? कहते हैं कि जी मैं फलाने नेता की बेटी हूं। मोदी जी ने परिवारवाद के ऊपर इतना लेक्चर दिया है। तेलंगाना गए वाला परिवारवाद के खिलाफ वोट करना, मोदी जी गए बिहार, कहे परिवारवाद के खिलाफ वोट करना। तो जनता इसे यहाँ की कह रही भी, भाजपा के जो फॉलोवर्स हैं वो कह रहे भी मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद के खिलाफ वोट करना है, इसलिए हम भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ वोट करेंगे। और दूसरी बात, ललित मोदी को भाजपा के प्रत्याशी ने देश से भगाया। एक तरफ भाजपा कहती है भाई हम ललित मोदी को लाना चाहते हैं, और उसका पोल खोल रही है भाजपा की प्रत्याशी। जब मैंने बांसुरी स्वराज को इंटरव्यू किया था, ये प्रश्न पूछा था क्योंकि आतिशी जी ने ये एलिगेशन लगाया था, and her answer was that she was the junior most. देखिए, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। अब ये एक्सक्यूजेज जी कि मैं तो पीछे खड़ा था, मैंने तो कुछ किया नहीं। अभी भी तो ईडी के वकील के रूप में नाम आया। तो क्या किया ईडी ने? जाकर के वहाँ गई, नहीं लॉर्ड, दिस नेम हैज़ टू बी रिमूव्ड, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया।
तो आदमी को समझ में आता है कि भाई कौन कहाँ खड़ा है। जनता अब सेलिब्रिटीज़ नहीं चाहती, जनता चाहती है कि जो ज़मीन पे रह कर के हमारे साथ दुख में, सुख में, धूप में, बारिश में साथ चले। तो इस मापदंड से कि जनता के साथ धूप में चले, जनता के लिए धूप में चले, जनता के लिए काम करें, साफ चेहरा है, नया चेहरा है, साफ सुथरा चेहरा है, उस मापदंड में बांसुरी स्वराज खरी उतरती है। मुझे नहीं पता आप किस आधार पे कह रही हैं, लेकिन मेरी उनको शुभकामनाएं। But the fact remains that she will accrue the advantage of being a clean, young, new face, and the fact that she is Sushma Swaraj, who is a tall leader, her daughter. So that is, I mean, for the people to decide. तो कितना चैलेंज है आपके लिए इन कोई challenge फैक्टर्स नहीं। का? देखिए चैलेंज क्या है, हम तो कर्मयोगी हैं, हम तो कर्म कर रहे हैं। जो मेरा आध्यात्मिकता का परिप्रेक्ष्य रहा है, माई फादर वॉज अ सन्यासी, महर्षि महेश योगी जी के गोद में खेला हूँ मैं। सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता मुझे मिला पिता से। उसी का परिणाम ये रहा है कि मैं बिल्कुल खाती समर्पण के साथ जनता को उपलब्ध रहा हूँ। हर व्यक्ति में गॉड्स मैनिफेस्टेशन देखता हूँ। हर व्यक्ति में आप भगवान देखते हैं या गॉड देखते हैं। व्हाट अबाउट मिस्टर मोदी? सी गॉड हैज़ मेनी फॉर्म्स। एक दयाल है, एक काल है, एक शैतान है, एक दयाल है, ठीक है। तो सब में एलिमेंट है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। सब में राम और रावण दोनों है, किसी में राम ज़्यादा है, किसी में रावण ज़्यादा है। Mr. Somnath Bharti, thank you very much. Thank you for your time and thank you for being here with us amidst your election campaign. Thank you. Thanks a lot. Thank you.